Good morning, student. Welcome in the mathematics class. Today we will discuss integer exercise 1.1. Yesterday we discussed what is integer, what are the properties of integer. Today we are going to discuss the problem related with integers of your NCERT textbook. So your first question is, there is one number line is given. Okay, on this number line some name is written of the cities Lahul Spiti, Srinagar, Shimla, Ooty, Bengaluru. It is written. Okay, so it is given following number line shows the temperature in degrees Celsius in different places on a particular day. So what we have to do, the first question that is asked, I hope everyone is having textbook and you open your textbook, you can see the question from there. So observe this number line and write the temperature of place marked on it. So what are the temperatures are marked on it? You have to write, you have to read this number. So you see, this is 0. Below the 0, it is showing by negative. Temperature is showing by the negative integer. Above the 0 means on the right side, it is showing by the positive. Okay, and the left side it is showing by the negative integer. Okay, so let us see. The first is Lahul Spiti. What is the temperature of Lahul Spiti? So the temperature of Lahul Spiti is, if we will say, it will be how much? -5, 6, 7, 8. -8 degrees Celsius, because it is in the left side of 0. So it is showing by the negative integer. Second city is Srinagar. Okay, what is the temperature of Srinagar? The temperature of Srinagar is, it is left hand side 2 lines, so it is -2 degrees Celsius. Okay, if it is left hand side of the 0, it is showing by the negative integer. Then Shimla, can you guess what is the temperature of Shimla? The temperature of Shimla is +5 degrees Celsius. Why it is plus? Because it is on the right side of the 0. Fourth, Ooty. What is the temperature of Ooty? Yes, it is after 10, 11, 12, 13, 14. So it is +14 degrees Celsius. Okay. Next, Bengaluru. What is the temperature of Bengaluru? The temperature of Bengaluru is +22 degrees Celsius. So this was your first question, in which it was asked what is the temperature of each city shown on the number line. What is the next question? What is the temperature difference between hottest and the coolest place among the above? Means in which one is the hottest place and which one is the coolest place. So we have to find out the difference. That is your second question of this second part of question, in which it is asked to you what is the hottest place. Can you guess what is the hottest? The hottest means where the temperature is maximum, positive side. So hottest place is Bengaluru. And how much it is? So it is 22 degrees Celsius. Is it okay? And the coolest place? The coolest place is where the temperature is minimum, means below the 0 degree. So it is -8 degrees Celsius. Okay, that is Lahul Spiti. That is -8 degrees Celsius. Now we have to find out the difference. What will be the difference between them? See, +22 degrees Celsius, and we are going to find out the difference between these two. Okay, so difference between 22 degrees Celsius and -8 degrees Celsius. How much it will come? +22 degrees Celsius, and that is 8 degrees Celsius. Minus become plus. Okay, at the time of multiplication, minus and minus become plus. So that will be +30 degrees Celsius. So difference between the hottest and coolest place will come. What is the difference will come? The difference will come +30 degrees Celsius. Okay, student. The third question is, what is the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar? See, Lahul Spiti and Srinagar, what is the difference?
Okay, difference between Lahul Spiti and Srinagar. Lahul Spiti and Srinagar. So difference is, if we will find out the difference, minus 8 degrees Celsius minus Srinagar is minus 2 degrees Celsius. So the difference will come minus 8 degrees Celsius minus minus plus. So see, minus 8 plus, so it is coming minus 8 and plus 2 degrees Celsius. Okay, see difference Lahul Spiti and Srinagar. So it is coming minus 8 plus 2 degree Celsius like this. So what will be the answer? It will come minus 6 degrees Celsius. I told you, when one integer is negative, another one is positive, always we are finding the difference between them. But that difference will be positive or negative, it will be depend on the number which is bigger. So here 8 is bigger number and the sign of 8 is negative, so the difference will come negative, minus 6 degree Celsius. Next, the next question is, can we say temperature of Srinagar and Lahul Spiti taken together is less than the temperature at Shimla? Temperature of Srinagar and Lahul Spiti taken together. Srinagar and Lahul Spiti. See, temperature of Srinagar minus 2 and Lahul Spiti, that is minus is taken together. If we will take these two temperature, so what is the question? The temperature of Srinagar and Shimla taken together, this is together, is less than the temperature of Shimla. It is less than Shimla. What do you observe? So if we will taken together, it will come minus 10 degrees Celsius. The sum of two negative integer will be negative, and it is asked whether it is less than positive number or not. So we know that every negative number is always less than the positive number. Okay, so it is asked Srinagar and Shimla, Srinagar and Shimla, Lahul Spiti and Srinagar. Temperature of Srinagar and Shimla taken together. Srinagar and Shimla, if we will take these two temperatures, Srinagar is minus 2, let us see, Srinagar, that is minus 2 degrees Celsius, it is given on the number line, and Srinagar and Shimla. Shimla is given plus 5. So taken together means we will add them. Okay, so we will add them. So this is minus 2 plus 5, again one negative, one positive, and we are adding. So we will find out their difference. Their difference will be 3, and that difference will be positive because bigger number is positive. Okay, so the taken together, their temperature. Together temperature will be plus 3 degrees Celsius, and it is asked it is less than Srinagar. So Srinagar temperature is minus 2 and together it is plus 3. So it is less than Srinagar. It is false. No. Together temperature is not less than श्रीनगर. कहने का मतलब श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर मिला के ये क्या श्रीनगर से कम है. अगर हम लोग श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर मिला लेते हैं, उन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो उसका आंसर आता है प्लस 3 डिग्री सेल्सियस. और ये दोनों का मिलाने के बाद जो टेम्परेचर आता है, टुगेदर टेम्परेचर आता है, क्या वो ये रिजल्ट जो है ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है? तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि इनका जो टुगेदर रिजल्ट आ रहा है वो प्लस 3 है और ये श्रीनगर के टेम्परेचर जो कि -2 है से कम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा हो सकता है, बड़ा होता है. इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है. अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं टेक्स्ट बुक का. क्या है सेकंड क्वेश्चन? इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर. ओके, पॉजिटिव मार्क्स फॉर
करेक्ट आंसर। पॉजिटिव मार्क्स आर फॉर करेक्ट आंसर, ये आपको दिया हुआ है, पॉजिटिव मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट खत्म हो गया, हम लोग सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। एंड नेगेटिव मार्क्स, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स फॉर नेगेटिव आंसर और इनकरेक्ट आंसर, सॉरी इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, ये इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स है और पॉजिटिव मार्क्स जो है वो करेक्ट आंसर्स के लिए है। और क्या होता है, इफ जेक्स स्कोर्स इन 5 कंसेक्यूटिव राउंड्स वर 25 - 5, ओके, जेक्स स्कोर in 5 consecutive rounds, in 5 consecutive rounds, in 5 successive rounds, 5 successive rounds, that is 25 minus 5 minus 10, 15 and 10. ठीक है, so what was his total at the end? So total at the end, हम लोगों को इसका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग जितने भी इसके मार्क्स हैं उनको ऐड कर देंगे। फर्स्ट जो टेस्ट है उसमें 25, सेकेंड में -5, थर्ड में -10, फिर +15 और फिर +10। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 25 प्लस माइनस विल बी माइनस, प्लस माइनस विल बी माइनस, +15 और +10। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू वोडोवास लॉ, फर्स्ट वी विल एड all the positive numbers we will add together and all the negative numbers we will add together. Okay, so how much it will come? 25 and 15, that will be 40 and 1 50। और नेगेटिव नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे -5 और -10 को, ये हमें मिलेगा -15 और आंसर कितना आ जाएगा, हम लोगों का आंसर आ जाएगा 35। देखिए फिर से पॉजिटिव नंबर जो है 50 पॉजिटिव इंटीजर है और 15 जो है नेगेटिव इंटीजर है। जब भी हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का सम करते हैं तो उन दोनों नंबरों का हम लोग डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों नंबरों का डिफरेंस 35 है, लेकिन ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। सो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 35। मतलब व्हाट वाज द टोटल एट द एंड? तो हिज टोटल विल बी 35 एट द एंड आफ्टर 5 सक्सेसिव राउंड्स। ओके, फर्स्ट राउंड में 25, सेकेंड राउंड में -5, -10, 15 और 10, इस तरह से उसको 5 सक्सेसिव राउंड्स में जो है मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से जो पॉजिटिव मार्क्स हैं वो करेक्ट आंसर के हैं और ये जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो इनकरेक्ट आंसर के हैं। तो लास्ट में पूछा गया है कि इन सब का लास्ट में टोटल कितना होगा। तो टोटल के हमने सबको ऐड कर दिया और फिर हमने इंटीजर के रूल के हिसाब से इसको ओपन कर दिया, बोर्डमास लॉ लगाया और हमारा आंसर आ गया 35। तो एट द एंड द जेक विल गेट 35 score. Okay, he will get 35 score. Now we will see the question number 3. So question number 3 is at Srinagar temperature was -5. ठीक है, श्रीनगर में टेम्परेचर कितना है? -5 है। श्रीनगर दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है श्रीनगर में ऑन मंडे को। एंड इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अब ये 2 डिग्री सेल्सियस जो है ड्रॉप हो जाता है। इट ड्रॉप्ड 2 डिग्री सेल्सियस, ओके, 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ड्रॉप हो जाता है मतलब कम हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो जब ड्रॉप हो जाता है उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर से दिखाते हैं, मतलब माइनस से शो करेंगे। मतलब इट रिप्रेजेंट बाय, इट मीन्स -2 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप मीन्स माइनस, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब माइनस हो जाएगा।
ठीक है, राइज होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इट ड्रॉप 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन -2 हो जाता है, मतलब -2 से कम हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस था और फिर उसके बाद कितना हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और गिर गया, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या पूछते हैं, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे में वो 4 डिग्री से बढ़ जाता है, मतलब हम उसको प्लस से दिखाएंगे। अब ये कितना हो गया था, ट्यूसडे तक ये हो गया था -7, अब ट्यूसडे के बाद फिर ये इट इज़ इंक्रीज बाय, इट रोज बाय, रोज मीन्स इंक्रीज, तो इंक्रीज को हम लोग प्लस से दिखाते हैं। तो अब रिजल्ट कितना आ जाएगा, अब हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ये रिजल्ट कैसे आया, -7 और +4। ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका डिफरेंस लेंगे, जब भी हम इनको प्लस या माइनस करते हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को, तो उनका डिफरेंस लेते हैं। इनका डिफरेंस आएगा 3 और ये डिफरेंस नेगेटिव होगा क्योंकि बड़ा नंबर क्या है आपका, नेगेटिव है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द डे। सो वेडनेसडे के दिन जो टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, so temperature will be -3 degree Celsius. -3 degree Celsius on Wednesday. आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे हमें केवल ये ध्यान देना है, क्वेश्चन जितने भी हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है इंटीजर से रिलेटेड है, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है, टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर वो बढ़ जाता है तो उसको पॉजिटिव से शो करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से। अगर वो कम हो जाता है, 0 से कम हो जाता है या कम हो जाता है, तो फिर उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर से शो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर उसी टाइप से, अगर हम लोग बैंक की बात करें, पैसों की, अगर हम लोग बैंक में पैसे जमा करेंगे, अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो उसको पॉजिटिव इंटीजर से शो करते हैं, और अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं अपने अकाउंट में से पैसा, तो उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर से शो करते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से दिया हुआ है आपको, आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है इस टाइप से। ठीक है, एक लाइन दी हुई है, आप देखिए, उसमें आपको यहाँ पे वाटर लेवल है, नीचे सबमेरीन है नीचे, और ऊपर जो है आपका एरोप्लेन है 5000 की हाइट पे। ठीक है, ये आपका 0 पोजीशन है, लेवल है वाटर लेवल, और ये 1200 डाउन, ये आपका पोजीशन है, वाटर पोजीशन। तो क्या दिया हुआ है, अ प्लेन इज फ्लाइंग, ये आपका प्लेन है, यहाँ पे आपका प्लेन है। ठीक है, ये जो पोजीशन है ये प्लेन की पोजीशन है यहाँ पे, जो कि सरफेस से, वाटर लेवल से कितना ऊपर है, ये वाटर लेवल से 5000 अबव है। सो वाटर लेवल जो है इसको हम वर्टिकल नंबर लाइन बोल सकते हैं। जो वाटर लेवल है वो 0 पोजीशन है। वाटर लेवल के अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर से शो होगा, लेकिन अगर हम लोग वाटर लेवल के नीचे की तरफ आएंगे तो वो नेगेटिव इंटीजर से शो होगा। सो ये प्लस 5000 हो जाएगा अबव द वाटर लेवल 5000, बिलो द वाटर लेवल 1200, सो दिस इज -1200। ठीक है, बिलो द वाटर लेवल। और ये है अबव द वाटर लेवल। बिलो द वाटर लेवल और अबव द वाटर लेवल। तो ये जो है मिड पोजीशन है। अगर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन रहती है तो 0 मिड पोजीशन होती है, तो ये आपकी मिडिल पोजीशन है इंटीजर की, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की जो है जगह है, तो वो वाटर लेवल है। तो उसके ऊपर जाएंगे तो आपको पॉजिटिव से शो करेंगे, अगर उसके नीचे जाते हैं तो नेगेटिव से शो करते हैं। उसी तरह से अगर आप धरती पे खड़े हैं, सरफेस पे खड़े हैं, तो वो पोजीशन आपकी 0 पोजीशन होगी, पॉजिटिव भी नहीं होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी। लेकिन वहाँ से अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, किसी भी अपार्टमेंट के, मॉल के, तो वो फिर
+1 +2 इस तरह से शो होगा। लेकिन अगर आप बेसमेंट में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो -1 -2 इस तरह से शो होगा। तो आपका जो अर्थ लेवल है, अर्थ सरफेस है, उसको हम लोग 0 पोजीशन मानते हैं इंटीजर नंबर लाइन के लिए, अगर हम लोग वर्टिकल नंबर लाइन लेते हैं तो। अब हमें क्या पूछा गया है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, समुद्र की सतह से 5000 मीटर ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमेरीन, और उसी टाइम पे पानी के अंदर एक सबमेरीन है यहाँ पे। ठीक है, ये सबमेरीन है यहाँ पे, उसी के नीचे, जस्ट नीचे। और कितना नीचे है, 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की पोजीशन का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देना पड़ेगा, ताकि इनके बीच का डिफरेंस निकल जाए। देखिए, इस पोजीशन को हमने +5000 से शो किया था, इसको हमने -1200 से शो किया था। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे कि इनके बीच में कितना वर्टिकल डिस्टेंस है। तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5000, और 5000 के बाद आपका ये आ जाएगा, देखिए 5000 के बाद आ जाएगा +1200। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6200। ये आपकी जो है वर्टिकल हाइट हो जाएगी। ठीक है, 6200 द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमेरीन। ठीक है, जब वो बराबर एक दूसरे के नीचे हैं, तो ये इनके बीच में हाइट हो जाएगी, तो वर्टिकल डिस्टेंस। Vertical distance will be 6200, positive 6200 मीटर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन द बैंक। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप इसको खुद ट्राई कीजिए। मोहन डिपॉजिट ₹2000 in the bank account and withdrawal ₹1642। ठीक है, मोहन क्या करता है, वो डिपॉजिट करता है। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in the bank and he withdraws ₹1642। ठीक है, इफ द विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। अगर हम लोग विड्रॉवल अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर से शो करते हैं, इस टाइप से शो करते हैं, नेगेटिव इंटीजर -1642। अगर विड्रॉवल को नेगेटिव से शो करेंगे, सो क्लियर, इसको हम लोग किससे शो करेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे, +2000। ठीक है, जमा करने के लिए प्लस और पैसे निकालने के लिए अकाउंट से माइनस। तो हमें ये पूछा गया है, इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो अगर आप विड्रॉवल अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर से शो कर रहे हैं, तो डिपॉजिट अमाउंट को आप कौन से चिन्ह से शो करेंगे, कौन से साइन से शो करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग उसको पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। And then how will you represent amount deposit? Find the balance in Mohan's account after withdrawal। और अगर इतना विड्रॉवल हम लोग कर लेते हैं, तो मोहन के अकाउंट में अभी कितना पैसा बाकी है। ठीक है, बैलेंस इन मोहन अकाउंट, मोहन्स अकाउंट। तो उसके अकाउंट में कितना पैसा बाकी है, +2000 और -1642। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 10 - 2 8, ठीक है, 9 9 - 4 5, दैट विल बी 19 19 - 16, दैट इज 358 रुपीज़, 358। अभी उसके अकाउंट में कितना पैसा बाकी है, उसके अकाउंट में 358 रुपीज़ बाकी है। सो
बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इज ₹358। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज का। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्वेश्चन। रीता गोज 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। देखिए पहले हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो है वेस्ट है, वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट है। आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं। हमेशा नॉर्थ ऊपर रहता है, साउथ नीचे रहता है, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट रहता है और यहाँ वेस्ट रहता है। तो रीता गोज 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। तो एक पॉइंट ए से रीता चलना स्टार्ट करती है ना, और 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और किस तरफ जाती है, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है। सपोज वो पॉइंट है बी, यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ तक जाती है। ओके, सो रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। ए से शुरू करके बी तक जाती है ईस्ट डायरेक्शन में। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहाँ से फिर वो स्टार्ट करती है और 30 किलोमीटर कहाँ जाती है, वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। सपोज वो यहाँ पहुँच गई, अभी यहाँ से स्टार्ट की बी से और रिटर्न जाती है वेस्ट डायरेक्शन में, 30 किलोमीटर जाती है और वो नई पोजीशन जो है वो सी पे पहुँच जाती है। ठीक है। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाने वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव से शो करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट डायरेक्शन है उसको हम लोग नेगेटिव से शो करेंगे। तो वेस्ट की तरफ जाने वाली डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव से शो करेंगे। ठीक है। सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो आप कैसे दिखाएंगे कि उसने कितना डिस्टेंस जो है वेस्ट में ट्रेवल किया। तो देखिए हमने यहाँ से दिखा दिया -30, क्योंकि अगर हम लोग वेस्ट ईस्ट की तरफ पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम लोग नेगेटिव दिखाएंगे। ठीक है। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए। तो उसकी जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए। तो जो आप देखिए ये इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले वो 20 गई, उसके बाद वो क्या आ गई -30 रिटर्न आ गई। ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -10 किलोमीटर। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस 10 आएगा और वो डिफरेंस नेगेटिव होगा क्योंकि बड़ा नंबर जो है आपका, बिगर नंबर जो है वो नेगेटिव है। सो 10 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी फ्रॉम पॉइंट ए वो कितनी हो जाएगी, -10 किलोमीटर। मतलब ए को हम लोग यहाँ पे 0 पोजीशन मान लेते हैं, और ए से अगर हम लोग राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव, और ए से अगर लेफ्ट साइड में जितना जाएंगे उसको नेगेटिव, तो -10 किलोमीटर। तो -10 किलोमीटर का मतलब ए के वो लेफ्ट साइड में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही, और आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए और इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से होमवर्क के लिए, असाइनमेंट के लिए दिए जाएंगे। थैंक यू।